Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 115 for that topic hydrocarbons. Now we have to learn very important article in this video, that is addition of hydrogen halide on alkenes. We have been learning regarding the chemical properties of alkenes. Please refer my earlier videos for that. Okay. Now addition of hydrogen halide यानी HX, हाइड्रोजन और हैलोजन का कंपाउंड, जैसे कि HCl, HBr, HI वी नो. ओके, HF भी होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी होता है, बट हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वेरी वेरी रिएक्टिव, तो उसे थोड़ा दूर रखा जाता है. ओके, HI, HBr, HCl. So they undergo electrophilic addition reaction on alkene. वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे मैकेनिज्म में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न एडिशन ऑफ HBr ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन. अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं, पर्टिकुलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2, when similar groups are present on two carbon atoms of double bond, then that is called as symmetrical alkene. यानी डबल बॉन्ड को अगर कट करेंगे हम और दो सिमिलर ग्रुप्स मिल गए, यहाँ पे क्या मिल गया, CH2 CH2 सेम है, देन दैट इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल अल्कीन. यानी ये भी हम देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसे कहते हैं ब्यूट 2ene. सो कैन यू टेल मी दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अल्कीन. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप्स है. डबल बॉन्ड के ये साइड में CH CH3 है और ये साइड में भी CH CH3 है. इफ यू कट दिस अल्कीन एट डबल बॉन्ड, यू विल गेट same two parts you will get. That's why they are called symmetrical alkenes. और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनसिमेट्रिकल हो गया, वो भी हम देखने वाले हैं. CH3 CH double bond CH2. So this is if cut at double bond, what you will get? You will get CH2 on one side and CH CH3 on other side. So this is propene and this is not symmetrical alkene. This is unsymmetrical alkene. ये unsymmetrical में कैटेगरी में जाता है, ये unsymmetrical alkene. ओके, तो उसका भी रिएक्शन हम देखेंगे. अब यहाँ पे देखना है on symmetrical alkene. अगर symmetrical alkene लेते हैं तो क्या होता है? Simple addition is there. What happens now here? Just look here. Particularly, if I will take the example of ethene, CH2 double bond CH2. This is ethene or ethylene. प्लस अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन करता हूँ, HCl की बात किए तो वो भी वैसा ही रिएक्ट करेगा. HI will also react in the same way. We have taken example of HBr. Then what happened there? We will get carbon-carbon double bond broken and hydrogen will get added on one carbon and bromine will get added on other carbon. यानी इसको अगर कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या आएगा वो CH3 CH2 Br. ऐसा डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग I have written like this. यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है and after that breaking of carbon carbon double bond, hydrogen is added on one carbon and bromine is added on other carbon. And what we are getting? We are getting CH3 CH2 Br. Very simple compound. What is the name of this? This is known as bromoethane or ethyl bromide. Bromoethane or ethyl bromide. Very clear, my friend. Very clear. Okay, this is alkyl halide. अब इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? Now, what do you mean by electrophile? Can you tell me? इलेक्ट्रोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, विच सीक्स अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन. तो जहां पर भी निगेटिव सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे वो झपक मारता है. दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल.
तो अभी देखेंगे इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म कैसा हो जाता है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, सो व्हेनेवर द H प्लस आयन फ्रॉम HBr का H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, उसे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। सो व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इज देयर, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, आइदर दिस और दिस। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है it will be carried by one electron, double bond will break open, and what you will be getting now, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके ये बॉन्ड बन जाता है CH2H, और इस कार्बन को वैसा ही छोड़ा जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ओके, ध्यान में आ रहा है। CH3CH2 प्लस कार्बोनियम आयन विल बी फॉर्म। This carbonium ion will be formed due to attack of electrophile. Attack of electrophile on one of the carbon. मैंने इस कार्बन को चुना है, इस कार्बन को भी हो सकता है। तो जिस कार्बन को वो अटैक करेगा, that electron pair will be shifted on that. पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे जाएगी, that will get negative charge. And because of that negative charge, this positively charged H plus will attach with that, and CH2H, that is CH3, will be formed. CH2 plus will be there. This is called ethyl carbonium ion, and the remaining part will be played by Br minus. ये HBr का H positive होता है. We should know that H is positive, Br is negative. Okay, Br तो हाइड्रोजन है, नेगेटिव रहता है. And now Br will do the remaining job, and Br will form a bond with CH2, and what you will be getting, CH2 इसको मिल गया H, इसको मिल गया Br, यानी CH3 Br, जो मैंने यहाँ पे दिखाया. So this is the mechanism what I told, and since the electrophile is attacking on this, ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर पूछा जाता है तो लिखना पड़ेगा. व्यू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसा अगर दिया है क्वेश्चन में तो ही हमको लिखना पड़ेगा. ये मैकेनिज्म है, ये डिटेल्स. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड ब्रेक्स, वन ऑफ द कार्बन एटम विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाई दैट हैपेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसको उकसा रहा है. वो कह रहे हैं भाई मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ. ये Br ने मुझे परेशान करके रखा है, isn't it? ये HBr में हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को परेशान करके रखा है, बिकॉज इट इज कैरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन पहले ही परेशान है, बोलते हैं मुझे कोई तो भी सपोर्ट करो, एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर इट आस्क्स फॉर दैट CH2, तो ये CH2 एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन की पेयर ले लेता है, एंड नाउ दैट ब्रोमीन दैट H प्लस विल अटैच or attack on that CH2, they will form a bond, and that bond will be CH2H, CH3. पर उससे क्या हो जाता है, since the pi bond is broken, the other carbon atom will be having positive charge, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना, लूट लिए उसने. So that's why it is getting positive charge, and now bromine minus will give the sympathy, and it will take that one opportunity there, it will form a bond with this, and we will be getting this. Now same reaction, same type of the product will be possible there. अगर हम दूसरा सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, यानी यहां पर अगर मैं ब्यूट 2 इन को ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3. It is another symmetrical alkene, but 2ene. तो क्या होता है इसमें, same reaction will take place, and what will be the product now? अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, and bromine we can write on any carbon. Suppose that I will write like this, CH3 CH Br CH2 CH3. Can you tell me what has happened? Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4.
कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और कार्बन नंबर 2 पे गया ब्रोमीन, 3 पे गया हाइड्रोजन, एंड वी हैव गॉट 2 ब्रोमो ब्यूटेन कंपाउंड। आप कहेंगे अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिखूंगा तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा नहीं क्या? यहाँ पे ब्रोमीन लिखूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूंगा, पर नॉमेनक्लेचर रूल क्या बताता है? यू हैव टू राइट दैट और गिव द नंबर फ्रॉम द नियरेस्ट एंड। तो बी आर यहाँ पे भी लिखा तो 1 2 ऐसा आएगा, वो 2 ब्रोमो इथेन ही आएगा, यानी 3 ब्रोमो इथेन पॉसिबल नहीं है, 2 ब्रोमो इथेन ही मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी गेट ओनली 1 प्रोडक्ट व्हेन वी टेक सिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ध्यान में रखो, HI reacts very rapidly than HBr reacts very rapidly than HCl. Okay, तो ये ध्यान में रखो अच्छी तरह से। So I am sure you must have understood the reaction. ये रिएक्शन बहुत ही important रिएक्शन है. We shall learn the remaining part in the next video. Thanks a lot for watching this video. We will meet again in the next video.